والدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، آتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخك تحت الكساء. فدان الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله، آتاذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك الأبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدم لمن آذهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد آذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
फ़क़ाल अली लिअबी या रसूल अल्लाह अख़बिरनी मा लिजलूसिना हाज़ा तहतल किसाए मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबी वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन वज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि जम्मुन मिन शिय्अतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमह व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शिय्अतुना व रब्बिल काबा। फ़क़ाल नबिय्युन सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन वज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ वफ़ीहि जम्मुन मिन शिय्अतिना व मुहिब्बीना वफ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व काशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ाज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अलियुन इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिक व शिय्अतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद्दुन्या वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। एक मरतबा और सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गईं, बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुज़र गईं, गुल पड़ गया के बिनते नबी कूच कर गईं। फाकों का रंज सह के हजूरे पे दर गई, महबूब किबरिया की अज़ादार मर गई, महबूब किबरिया की अज़ादार मर गई। सिबतैन घर में आए जो बेताब बेकरार, इस माँ से पूछने लगे अम्मा का हालदार, इस माँ से पूछने लगे अम्मा का हालजार। वो बोली नींद आ गई शुक्रे किरदिगार, खाना तो जल्द खाओ के भूखे हो मैं निसार। ये सुन के बेकरार हुई वो जिगर फिगार, अरे चादर जमीन पे फेंक के चिल्लाई बार बार, बच्चे हैं उनको सब्र दे ऐ किरदिगार। अब वो खिलाने वाली कहाँ तुम पे मैं निसार, प्यारो तुम्हारी पालने वाली गुजर गई, खाओगे
किसके हाथ से अम्मा तो मर गई, खाओगे किसके हाथ से अम्मा तो मर गई, बोले कि चैन देगा ज़माना तो खाएंगे, अम्मा हमें खिलाएंगी खाना तो खाएंगे, बाबा को रोते रोते जो ज़हरा गुजर गई, अरे गुल पड़ गया कि बिनते नबी कूच कर गई, बाबा को रोते रोते। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। अबू ज़र पहुँच गए साढ़े 8 तक, तो फिर सफदर भाई के बाद तैयब पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर वो मसीहा पढ़ लेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहुँचना चाहिए, ठीक है, मसीहा फिर पढ़ के सही है। घर के अंदर रसूल की बेटी, घर से बाहर हजूम लोगों का, घर के अंदर रसूल की बेटी, घर से बाहर हजूम लोगों का, कह रही थी ये रो के बिनते नबी, कुछ तो लोगों हया करो मेरा, घर के अंदर रसूल की बेटी। देख बाबा के तेरी उम्मत ने तेरी बेटी का दर जला डाला, देख बाबा के तेरी उम्मत ने तेरी बेटी का घर जला डाला, मैं तड़पती रही मगर बाबा मेरा मोहसिन शहीद कर डाला, घर के अंदर रसूल की बेटी। और देख रस्सियों से बांध है दर को, मेरे बच्चों को भी रुलाया है, देख रस्सियों से बांध है दर को, मेरे बच्चों को भी रुलाया है, जख्मी हालत में मैंने रोका तो ताजियानों से मुझको भी मारा, घर के अंदर रसूल की बेटी। और मुझसे हसनैन पूछते के चेहरा मैं ढांप के क्यों रखती हूँ,
मुझसे हसनैन पूछते हैं कि चेहरा मैं ढांप के क्यों रखती हूँ, क्या बताऊं कि मेरे चेहरे पर जुल्म का एक निशान है ताज़ा। घर के अंदर रसूल की बेटी, और आज चेहरे पे क्यों तबस्सुम है, पूछा मौलाना सैयदा से तो। आज चेहरे पे क्यों तबस्सुम है, पूछा मौलाना सैयदा से तो। बोली बाबा थे ख्वाब में आए, लेके पैगाम मेरी रुखसत का। घर के अंदर रसूल की बेटी, और बाद रुखसत जो जख्म पहलू का याद आया तो रोए खूब अली। बाद रुखसत जो जख्म पहलू का याद आया तो रोए खूब अली। आज भी रोते हैं इमाम ज़मान, देख कर टूटी कब्र माँ की ज़िया। घर के अंदर रसूल की बेटी। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुशनुद इमाम ज़माना बुलंद तरीन सल्लल्लाहु ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। हक मांगने को ज़हरा, हक मांगने को ज़हरा दरबार में गई है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। आवाज़ आ रही है, मैं बिन्ते मुस्तफ़ा हूँ, बाबा के कलमा गोयो, मैं ही तो फातिमा हूँ। पहचानने से दुनिया, पहचानने से दुनिया इनकार कर रही है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। सुनकर सलाम हैदर कोई नहीं है रुकता, वाजिब नहीं समझता कोई जवाब देना। अफसोस फातिमा भी, अफसोस फातिमा भी ये बात जानती है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। मस्जिद में सर झुकाए मौला खड़े हुए हैं, हाकिम की तोहमतों को चुपचाप
आप सुन रहे हैं। सिद्दीक़ा सबके आगे, सिद्दीक़ा सबके आगे झुटलाई जा रही है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। कहती है रो के ज़हरा जाने ना दूंगी तन्हा, पटके में मुर्तज़ा के है हाथ सैयदा का। अब है किसी का दुर्रा, अब है किसी का दुर्रा और दुख तरे नबी है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। एक कूचे में पहुँच कर देखा है मुजतबा ने, एक कूचे में पहुँच कर देखा है मुजतबा ने। जालिम ने ज़ल्ब मारी कैसे खुदा ही जाने। एक कूचे में पहुँच कर देखा है मुजतबा ने। जालिम ने ज़ल्ब मारी कैसे खुदा ही जाने। बिनते नबी ज़मीं पर, बिनते नबी ज़मीं पर गश खा के गिर पड़ी है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। मज़लूम करबला को याद आ गई सकीना, बेटी पे मुस्तफ़ा की कुनफूस का हाथ उठा। पहलू में मुर्तज़ा के, पहलू में मुर्तज़ा के तलवार रो पड़ी है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। पहलू भी है शिकस्ता, हाथों पे भी है छाले, है आपकी अमानत अब आपके हवाले। ये कह के मुर्तज़ा ने, ये कह के मुर्तज़ा ने मैयत नबी को दी है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। काफ़ी है बस ये फ़िक्रा रोने को ज़िंदगी भर। हाथों को अपने अक्सर कहते थे मल्के हैदर। खैबर शिकन की ज़ौजा, खैबर शिकन की ज़ौजा घुट घुट के मर गई है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। कैसे लिखे तकल्लुम गुर्बत अली वली की। ज़ौजा सहाबियों के दरबार में गई थी। बेटी शराबियों के, बेटी शराबियों के दरबार में गई है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है। हक मांगने को ज़हरा, हक मांगने को ज़हरा दरबार में गई है। ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है, ये गुर्बत अली है।
बर मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। जब से हसनैन के बाबा से सुना है ये कलाम कि मुझको अब कोई मदीने में नहीं करता सलाम, तब से ये हाल है मेरा, तब से ये हाल है मेरा। अपने गम भूल के बाबा बस मुझे फिक्र अली है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, और मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने हक विलायत का बताने ज़हरा घर घर में गई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। आपके बाद ना तारीक ये देखा गया घर, आग दरवाजे पे उम्मत ने लगा दिया कर। बाबा जाबाद तुम्हारे देखिए घर में हमारे रोशनी कैसे हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, अरे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे। तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, और कोई फसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम।
सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कब्र ज़हरा से तकल्लुम ये सदा आती है। और कितनी सदियों से मेरी कब्र पे वीरानी है। फूल तुरबत पे चढ़ा दे, एक दिया के जला दे। क्या मदीने में कोई है? तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। सलवात बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जख्मी पहलू है जलता दरवाजा, आओ फिजा संभालो ज़हरा को। जख्मी पहलू है जलता दरवाजा, आओ फिजा संभालो ज़हरा को। सिलसिला रुक ना जाए सांसों का, आओ फिजा संभालो ज़हरा को। ये वही दर है जिस पे पैगंबर आके कुरान पढ़ते थे अक्सर। ये वही दर है जिस पे पैगंबर आके कुरान पढ़ते थे अक्सर। इसको उम्मत ने खाक कर डाला, इसको उम्मत ने खाक कर डाला। आओ फिजा संभालो ज़हरा को, आओ फिजा संभालो ज़हरा को। जख्मी पहलू है जलता दरवाजा, आओ फिजा संभालो ज़हरा को। ताज़ियानों से जुल्म ढाते रहे लोग, शमशीर की चुभाते रहे। ताज़ियानों से जुल्म ढाते रहे लोग, शमशीर की चुभाते रहे। चूर जख्मों से हो गई ज़हरा, चूर जख्मों से हो गई ज़हरा। आओ फिजा संभालो ज़हरा को, आओ फिजा संभालो ज़हरा को। जख्मी पहलू है जलता दरवाजा, आओ फिजा संभालो ज़हरा को। पसलियां तोड़ के वो हंसते थे, जुल्म ढाकर अदू ये कहते थे। पसलियां तोड़ के वो हंसते थे, जुल्म ढाकर अदू ये कहते थे। देखो मोहसिन को कत्ल कर डाला, देखो मोहसिन को कत्ल कर डाला। आओ फिजा संभालो ज़हरा को, आओ फिजा
संभालो जहरा को, जख्मी पहलू है जलता दरवाजा, आओ फिजा संभालो जहरा को। ऐसा कुछ जुल्म कर दिया उस पर, सांस लेना भी हो गया दूभर। ऐसा कुछ जुल्म कर दिया उस पर, सांस लेना भी हो गया दूभर। हाथ पहलू से अब नहीं उठता, हाथ पहलू से अब नहीं उठता। आओ फिजा संभालो जहरा को, आओ फिजा संभालो जहरा को। जख्मी पहलू है जलता दरवाजा, आओ फिजा संभालो जहरा को। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। महमूद भाई से मुल्तमिस तशरीफ लाएं। जनाब रिजवान रिजवी साहब का कलाम पेश कर। मौलाना साहब इजाज़त, ये वही कलाम है जो जैदी साहब ने पढ़ा, उसका बकिया हिस्सा मैंने पढ़ना है। मुंह पे लगता तमाचा देखा है, मुंह पे लगता तमाचा देखा है, माँ को गश खा के गिरता देखा है। दिल फटा जा रहा है बच्चों का, दिल फटा जा रहा है बच्चों का। आओ फिजा संभालो जहरा को, ये जो दीवारों दर पे खून है लगा, ये जो दीवारों दर पे खून है लगा, ये मोहम्मद के दिल का है बाखुदा। खून कब्रे नबी से बहने लगा, खून कब्रे नबी से बहने लगा। आओ फिजा संभालो जहरा को, टुकड़े तहरीर मुस्तफा करके, टुकड़े तहरीर मुस्तफा करके, हाय दरबार में खड़ा करके। जख्मी दिल भी किया जिगर भी किया, आओ फिजा संभालो जहरा को। मंजरे शाम कूफा करबो बला, मंजरे शाम कूफा करबो बला, सोच कर करती रहती थी गिरिया, सोच कर करती रहती थी गिरिया। अश्कों का सिलसिला नहीं रुकता, अश्कों का सिलसिला नहीं रुकता। आओ फिजा संभालो जहरा को। लिखे रिजवान ने जो दर्द व अलम, लिखे रिजवान ने जो दर्द व अलम, सुन के जाफरी से होता है मातम। खून रुलाता है दर्द जहरा का, खून रुलाता है दर्द जहरा का। आओ फिजा संभालो जहरा को। सलावत सलावत सलावत
आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। पसलियाँ तोड़ी गईं कैसे ये बतलाऊंगी मैं, हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं। हाथ पहलू से न तुम मेरा हटाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। वो मुसीबत आपने आज हुआ देखी नहीं, अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं। ऐसे कुनफुस ने हमारा ताज़ियाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा, आपके रुखसार पर ये नील है कैसा परा। मैंने खाया है तमाचा मत बताना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। ताज़ियाने के अज़ियत का उठाना एक तरफ, वो तमाचे क़त्ल मुहसिन दर जलाना एक तरफ। सबसे मुश्किल था मगर दरबार जाना या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा या अली। सलवात। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह। अदब करो के ज़िउल एहतराम है हम लोग, अदब करो के ज़िउल एहतराम है हम लोग। अरे नबी ओ आले नबी के गुलाम हैं हम लोग, नबी ओ आले नबी के गुलाम हैं हम लोग। और खुदा ने खल्क किया है बराए ज़िक्र हुसैन
खुदा ने खल्क किया है बराए जिक्र हुसैन। अरे दुआए दुख्तर खैरुल अनाम है हम लोग, अदब करो के ज़िउल एहतराम। और मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आल मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। एक मत पे बावलन सवाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व बड़ा अज़ीम था सदमा अली बहुत रोए, बड़ा अज़ीम था सदमा अली बहुत रोए। रे बना के तुरबत ज़हरा अली बहुत रोए। अरे न रोए हाथों के छालों को देख कर मौला, अरे न रोए घर मेरा तीन रोज का फाका, शिकस्ता पहलू जो देखा अली बहुत रोए। अरे शिकस्ता पहलू जो देखा अली बहुत रोए। अरे गले में बांधी गई रस्सियां तो सब्र किया, अरे दरे बतूल से उठा धुआं तो सब्र किया। बना के तुरबत ज़हरा अली बहुत रोए। अरे बना के तुरबत ज़हरा अली बहुत रोए। शिकस्ता पहलू जो देखा तो सब्र हो न सका, कुछ ऐसा जख्म था गहरा के सब्र हो न सका। अरे उठा के जख्मी जनाजा अली बहुत रोए। अरे उठा के जख्मी जनाजा अली बहुत रोए। अरे अभी तो कब्र रसूले ज़मन भी ताज़ा थी, अरे अली के जख्मों का इस तरह होगा अंदाज़ा, जो घर में रह गए तन्हा अली बहुत रोए। जो घर में रह गए तन्हा अली बहुत रोए। और पुकारा माँ को तड़प कर हुसैन ने जिस दम, अरे रखा था माँ ने भी उस वक्त ममता का भरम। अरे कफन का बंद जो टूटा
अली बहुत रोए, कफन का बंद जो टूटा, अली बहुत रोए। बड़ा अजीम था सदमा, अली बहुत रोए। अरे शरीके गम की लहद पर बहाए थे आंसू, बवक्ते गुस्ल भी आंखों में आए थे आंसू। पकड़ के अपना कलेजा अली बहुत रोए। अरे पकड़ के अपना कलेजा अली बहुत रोए। हर एक मुसीबत और रंजो अलम में साथ दिया, नबी के बाद हर एक रंजो गम में साथ दिया। अरे न जाने सोच के क्या क्या अली बहुत रोए। न जाने सोच के क्या क्या अली बहुत रोए। आखिरी शेर। अरे सुला के ज़ेरे ज़मी बिनते मुस्तफा को अली, अरे किए वो बैन के सारी ज़मी लरज़ने लगी। और हिसारे सब्र जो टूटा अली बहुत रोए। बना के अली बहुत रोए। हिसारे सब्र जो टूटा अली बहुत रोए। अरे बना के तुर्बत ज़हरा अली बहुत रोए। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह सल्ले अला मोहम्मदिन व मरसी के सिर्फ 3-4 बंद। फातिहा। बिस्मिल्लाह। आज जिया भाई की तरफ से स्पॉन्सर होती है मजलिस, उनके मरहूमीन के लिए ख़ास तौर पे, और यहाँ मौजूद जो भी हैं उनके मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मदिन। दुनिया से आज रहलते बिनते रसूल है। दुनिया से आज रहलते बिनते रसूल, दस्ते अजल में इस्मते कुबरा का फूल। अरे कब्रे नबी लरसती है यसरब मलू। अरे हसनैनो मुर्तज़ा से विदाए बुतूल।
हसनैन मुर्तज़ा से विदाए बद। अरे पट्टी से लग के ज़ैनबो कुलसूम रो, इस कम सिनी में बच्चियां बे माँ की गोद, इस कम सिनी में बच्चियां बे माँ की गोद। और ज़ैनब का हाल ये है कि आंसू तो हैं, अरे कुलसूम को भी देती है पैगाम तसल। और फरमा रही है छोटी बहन से के मेरी रहती नहीं जहाँ में हमेशा किसी, रहती नहीं जहाँ में हमेशा किसी। अरे बेबस्ती हमको छोड़ के बिरिया चली, अरे अल्लाह ने बुला लिया माँ चली, अल्लाह ने बुला लिया माँ चली। ज़ैनब की भोली बातों पे मुज़तरते मुर्द, आसमान बच्चियों को गले से लगा। और चुप के खड़े थे लाश की बाली पे मोर, और सर रखा था कदमों पे माँ के गुस्से, और सर रखा था कदमों पे माँ के गुस्से। अरे सब रो रहे थे देख के मैयत वो तो, दुनिया से उठ रही थी निशानी रसूल, दुनिया से उठ रही थी निशानी। और मैयत के पास बैठ के बोले ये मुर्द, अरे बच्चों संभालो दिल को के ये सब्र की, अब एहतमाम करना है मैयत के गो। अस्मा के साथ सहन में जाओ पे, अस्मा के साथ सहन में जाओ पेदर। अरे तामील हो वसीयते बिन्ते रसूल, अंजाम दे हम आखिरी रोज मदबूतो, अंजाम दे हम आखिरी खिदमत बद। अरे अल्लाह कितने जुल्म हुए हैं बुतो, अरे थर्रा रहा है कर्ब से तारीख, रोते तड़पते गुजरी है बीबी के ओ। महशर हर एक शब थी कयामत हर एक, महशर हर एक शब थी कयामत हर। अरे शहजादी कैसे जख्मों की तेरे दवा कर, आंसू बगा रहे गुलाम और क्या, आंसू बगा रहे गुलाम और क्या। दुनिया से आज रहलते बिन्ते रसूल है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत शुक्रिया। किबला सैयद तैयब मुसवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि इसे भरों और मोमिनीन से खिताब फरमाएं। किबला की सेहत सलामती के लिए बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत।
Before we get begin, please recite Surah Fatiha for Brother Ziya's marhumeen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بهد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ووتد بالسخر ميدان أرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. These next 2 nights, as you all know, we are commemorating the shahadat of Lady Fatimiya Zahra, salawatullahi alaiha. And just as it's difficult to know where to start when we speak about Amir al-Mu'mineen, it's very difficult to know where to start when we speak about Lady Zahra, salawatullahi alaiha. What do I mean? Just as we don't know when the beginning of Amir al-Mu'mineen is, we don't know when the beginning of Lady Zahra is. Just as we don't know when the end of Amir al-Mu'mineen is, we don't know when the end of Lady Zahra is. So the only thing that we can speak about is how they were when they were in this world. When they took on that libas of bashar, when they took on the clothes, or when they started wearing the clothes of a human being, and they were in front of us looking like a human being, then that's the only thing that we can speak about them. What their Nurani aspect was, it's very difficult. Why? Because even now there are some Shias, when it comes to the Nurani aspect of the Ahlul Bayt, they say, why should we discuss this aspect? What's the point in discussing this aspect? Why should we even believe that these Ahlul Bayt they had this Nurani aspect? If you all remember the Quran, what does it say? Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Rayba Fi Hudal Lil Allazina Yu'minuna Bil Ghayb. The mu'mineen are those individuals who believe in the unseen. Allah subhanahu wa ta'ala is unseen. The Nurani aspect of these Ahlul Bayt is unseen. So if you want to be considered a mu'min, then you have to believe in this unseen of the Ahlul Bayt. And that's why I said it's very difficult to speak about the Ahlul Bayt, specifically Lady Zahra sallallahu alaiha. But inshallah, what I want to do in the next half an hour, I want to look at Lady Zahra through the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. I want to look at Lady Zahra through the eyes of the Holy Prophet and see how Allah subhanahu wa ta'ala and the Holy Prophet gave us Lady Zahra, and how the ashab of the Holy Prophet, they treated Lady Zahra. I want to look at how the Holy Prophet treated Lady Zahra, and I want to look at how the ashab of the Holy Prophet treated Lady Zahra. Why? Because there's a stark difference. This verse that I started off with, where Allah subhanahu wa ta'ala says, "O my Prophet, tell them that La asalukum alayhi ajran illa al-muwaddati fil qurba," that I do not ask of you any reward. For what? For bringing you this message from Allah subhanahu wa ta'ala, except that you love qurba, except that you have love for
my nearest of relatives. When this verse was revealed, there were companions of the Holy Prophet that were around, and they asked the Holy Prophet, Ya Rasulullah, who are these qurba that Allah subhanahu wa ta'ala has made wajib upon us to love? That's when the Holy Prophet, he says what? He says that these are Ali, Fatima, Hassan, and Hussein. These are these qurba that it's wajib for every single Muslim, not just Shias. If you consider yourself to be a Muslim, then it's wajib for you to love all of these. And the individual that we're speaking about tonight is Lady Zahra sallallahu alaiha. And this individual, when we look at Lady Zahra from the eyes of the Holy Prophet, there are places where he says that she is Abiha. Allahumma salli ala. When we look at Lady Zahra from the eyes of the Holy Prophet, there are places where the Holy Prophet, where he says that Fatima is a part of me. There are places where he says that Fatima is my flesh. There are places where he says that anyone that annoys Fatima has annoyed me. And anyone that annoys me has annoyed Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone that has annoyed Allah subhanahu wa ta'ala has become kafir. Looking at Lady Zahra from the eyes of the Holy Prophet. When we look at Lady Zahra from the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and how he portrayed Lady Zahra, we see that sometimes she is Laylatul Qadr. We see sometimes she is Inna Atina Kal Kawsar. When we look at Lady Zahra from the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, we see that she is the centerpiece of Ahl Kisa. You look at the way the Holy Prophet portrayed the Lady Zahra. You look at the way Allah subhanahu wa ta'ala portrayed Lady Zahra. And you compare that with the way the Muslims treated Lady Zahra, you see that there's a stark difference. There's a stark difference. But to begin with, Lady Zahra sallallahu alaihi wasallam, when it came to her coming to this world, then look at the difference between Lady Zahra and every other woman. When it came time for her to come to this world, the narrations, they state that Lady Khadija, when she was pregnant with Lady Zahra, all the women of Makkah that boycotted Lady Khadija. These same women, these same people that were living off the sadaqah of Lady Khadija when they were in Makkah. Now it's come time for these women, for these people to thank Lady Khadija. And what did they do? They boycott her. The narration state what? When it was close to Lady Fatima's time, when she was about to arrive, all these women, they boycotted Lady Khadija. And Lady Khadija, she was sorrowful. When she was sorrowful, she would hear Lady Fatima speak from within her. She would hear Lady Fatima speak from within her. The Holy Prophet, he comes and he hears Lady Khadija speak to someone, and the Holy Prophet asks, Ya Khadija, who are you speaking with? And Lady Khadija says, Ya Rasulullah, I'm speaking with this child that is within me. Whenever I'm sad, this child, it consoles me and tells me not to worry. The status of Lady Fatima, Zahra, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, in the eyes of the Holy Prophet, what have the women done? They've boycotted. When it comes time for Lady Khadija to give birth to Lady Zahra, the narration states that none of the women of Makkah came. Lady Khadija, she was alone. When she was alone, Lady Khadija, she sees what? She sees that there are 4 women that walked from within the door. And who are those 4 women? That's Sarah, the wife of Hazrat Ibrahim. That's Asiya, the wife of Fir'aun. That's Kulsum, the mother of, or the sister of, who? Hazrat Musa alayhi salam. And that's Maryam bint Imran. She sees that these 4 women are walking through that door, and they say salam to Lady Khadija, and they tell her, do not worry, we are going to be your midwives. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. Look at the status of Lady Fatima Zahra, where these 4 great personalities are the midwives of Lady Zahra. Midwives. Sarah, she's what? She's the mother of all the prophets of Banu Israel. The mother of all of the prophets of Banu Israel. She's coming as a midwife. Why? Because Lady Zahra has to come to this world. The status of Lady Zahra. When Lady Zahra comes,
Lady Sarah, what did she say? She says salam to her. When she says salam to her, Lady Zahra, she says wa alaykis salam, and she takes every one of their names and she says salam to them. Lady Sarah, she asked Lady Zahra to testify. And what does Lady Zahra, the narration, it states what? Lady Zahra, she says, I testify that my father is Khatamun Anbiya. 1. 2, I testify that Ali is Wasi of Rasulullah. I testify that my 2 sons, Hassan and Hussain, are Shabab Ahl Jannah. The testimony of Lady Zahra. After testifying that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. As soon as Lady Zahra comes to this world, what is she doing? She's testifying to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. This is important. It'll come inshallah later. She's testifying to what? The risalat of the Holy Prophet. She's testifying to what? The wilayat of Amir al-Mu'mineen. She's testifying to what? That her sons are the princes of Jannat. Correct? This is Lady Zahra. When it came to naming Lady Zahra, the Holy Prophet, he named her Fatima. Fatima comes from Fatima. Fatima, it means to wean away from. In Arabic, it means to wean away from or to take away from. Amir al-Mu'mineen, he goes to the Holy Prophet and he says, Ya Rasulullah, can I ask you a question? What is it, Ya Ali? Why did you name Fatima Fatima? Why did you name Fatima Fatima? The Holy Prophet, he said, Ya Ali, I named Fatima Fatima. Why? Because on the Day of Judgment, she is going to wean away and she's going to take away her Shias from the hellfire. She's going to take away the Shias, her Shias from the hellfire. That's Fatima. A companion of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he goes to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. He goes to the Imam and he asks the Imam, Yabna Rasulullah, why was she named Zahra? Fatima, we attach the title of Zahra with Fatima. Yes, she has the title of Batul. She has all of those other titles as Muhaddasa. She has all those titles, correct? Tahira, Muhaddasa, she has all those titles. But the most famous title is Fatimatul Zahra. A companion of Imam Sadiq, he goes to the Imam and he asks, Yabna Rasulullah, why was Zahra given that title? And the Imam, he says, the reason she's known as Zahra is that when she used to stand for her Salatul Layl, her light shined, or her light used to shine the heavens the way these stars shine this world. The light of Lady Zahra is what's shining the heavens. What does that mean? When we look at the night sky, we say that, oh, this night sky is so beautiful. Why? Because of the stars. We say that the night sky is beautiful. Why? Because of all the stars we see. If Jannat is beautiful, it's beautiful. Why? Because of the nur of Fatima that's reached it. If Jannat is beautiful, it's because of the nur of Fatima. That's why it's beautiful. 1. 2. When it comes to Lady Zahra, I had said, when she was born, the first thing she did was sajda. The first thing she did was sajda, and she recited the testimony of the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, of the Prophet of the Holy Prophet, the wilayat of Amir al-Mu'mineen. Correct? This was important. Why? Lady Zahra, she gets older, she gets older, she gets older. Now it's time for her to get married. When it's time for her to get married, in Islam, you're going to marry someone that is your equal. You're going to marry someone that is your equal. Correct? The Holy Prophet, he says, look, men and women, they're not equal. Men and women are not, they're not created equal. Meaning what? Men are stronger than women. It's not I'm not saying that, oh, you know what, men being weaker is a bad, no. This has nothing to do with it being a good thing or a bad thing. But naturally, men are stronger than women. Naturally, men are mentally more stronger than women. That's just nature, correct? But when it comes to Lady Zahra and Amir al-Mu'mineen, the Holy Prophet says that they're both equal. They're both equal. They're both equal in what sense? They're both equal in their knowledge. They're both equal in their iman. They're both equal in their love for the Holy Prophet.
They're both equal in their love for the religion. They're both equal in their love for Allah subhanahu wa ta'ala. Why? When Lady Zahra was born, the first thing she did was recite the Shahada. When Amir al-Mu'mineen was born, the first thing he did was recite the Shahada. The testimony to Allah subhanahu wa ta'ala. When it came to the marriage of Lady Zahra, she would only marry someone that is her equal. The narration state what? When it came to the marriage of Lady Zahra, all of the companions of the Holy Prophet, they came and asked. What did the Holy Prophet say? She's too young. What did the Holy Prophet say? No, she's too young. But when Amir al-Mu'mineen comes, what does the Holy Prophet do? He says, Ya Ali, hold on, let me ask Lady Zahra. Let me ask Lady Zahra. This is something for the Muslims to ponder about. Why? Who has come to the doorsteps of the Holy Prophet? Amir al-Mu'mineen. There is no better preacher than Amir al-Mu'mineen except the Holy Prophet. Even though this individual comes to the doorsteps of the Holy Prophet said, Ya Ali, let me ask my daughter first. Let me ask my daughter. Yet we have some societies without even asking the daughter, the marriage has been done. We have some societies that exist today. Oh, we've already read the Sigha. They're 2 years old. Oh, these two are going to get married no matter what. No, this is un-Islamic. Islam does not teach this. The culture might teach this, but you have to remember, you can take from your culture as long as what? It does not contradict something that Islam says. As long as it does not contradict that something that Islam says. If Islam says that a woman has a right to know who she's going to marry, if Islam says that a woman has a right to say yes or no to who she wants to get married to, then someone forcing that marriage on that woman is haram. That means what? That means that if in that culture they're forcing that marriage onto the woman, then they're not practicing what Islam has told them to practice. They're practicing their culture, that's true, but it's not Islam. Sahih. The Holy Prophet, he tells Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, let me ask Lady Zahra. He goes to Lady Zahra, he says to Lady Zahra, Ya Zahra, Amir al-Mu'mineen has come for your hand in marriage. He has come for your hand in marriage. What do you say? Lady Zahra, the narration says she stays quiet. When she stays quiet, the Holy Prophet, he takes this as a sign of her yes. And he goes back to Amir al-Mu'mineen and he says to Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, she's accepted your request. Look at the status of Lady Zahra and look at who she's marrying. What do I mean? Lady Zahra, she was born into the household of prophethood. So she's going to marry someone who was born into such a house or a better house. She was born into the house of prophethood. Amir al-Mu'mineen was born in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. She was born into the house of prophethood. Amir al-Mu'mineen was born into the house of Allah subhanahu wa ta'ala. She was the daughter of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He was the son of the savior of Allah subhanahu wa ta'ala's messenger. You look at their status, you see that they were completely equal. They're equal. What's the difference? The only difference is that Amir al-Mu'mineen is Lady Zahra's imam. That's the only difference. But Lady Zahra, she's the imam of all the other imams after Amir al-Mu'mineen. She's the imam of all the other imams after Amir al-Mu'mineen. She's the hujjat of all the other hujjatullah after Amir al-Mu'mineen. That's the only difference. Allah subhanahu wa ta'ala, Lady Zahra, she asked the Holy Prophet, when the Holy Prophet, he says to Hazrat Zahra that on the Day of Judgment, everyone will be asked about the wilayat of Amir al-Mu'mineen. Everyone. Lady Zahra, she says, Ya Rasulullah, this is the way that she used to talk with her father. She never called him, oh father. She wouldn't say that. She would constantly say, Ya Rasulullah. She said, Ya Rasulullah, even you. About what? About the wilayat of Amir al-Mu'mineen. Ya Rasulullah, even you will be questioned about it? And the Holy Prophet says, yes, even I will be questioned about it. Even I will be questioned about it. Ya Zahra, even you will be questioned about it. The wilayat of Amir al-Mu'mineen. That's how important this wilayat of Amir al-Mu'mineen is. That's the reason Lady Zahra went in front of Abu Bakr. Why? Because everyone was going to be questioned about this wilayah. That's how important this is.
Lady Zahra salawatullah, when you look at her from the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, I had said that sometimes she's Kawthar, sometimes she is Laylatul Qadr. And for the last week, last Thursday, I believe, I was doing the tafsir of Surah Al-Kawthar. And we had come to the point where Inna a'tayna kal Kawthar. We have given you abundance. This abundance, this Kawthar, the Mufassirin say that it deals with Lady Zahra salawatullah. She is Kawthar. What does that Kawthar mean? Why is this important? If you look at what Allah subhanahu wa ta'ala is saying and you compare it to the history of the world, Allah subhanahu wa ta'ala, He populated the whole earth with the children of Hazrat Adam alayhi salam. But He doesn't say, Ya Adam, I've given you Kawthar. He doesn't say, Ya Adam, I've given you Kawthar. He repopulates the world after the flood of Nuh. But He doesn't say, Ya Nuh, I've given you Kawthar. He gives Hazrat Yaqub 12 sons, but He doesn't say, Ya Yaqub, I've given you Kawthar. He gives Hazrat Sulaiman a kingdom which He had never given any other prophet before, but He doesn't say, Ya Sulaiman, I've given you Kawthar. He gives the Holy Prophet just one daughter and He says, Ya Muhammad, I've given you Kawthar. What does this mean? This means that in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, populating the earth, repopulating the earth again, the 12 sons of Hazrat Yaqub and the kingdom of Hazrat Sulaiman mean absolutely nothing when it's compared to Lady Zahra. Or else He could have said for any one of those events that, oh, Sulaiman, I've given you Kawthar. But He doesn't say that. And then we looked at the second verse. What was the second verse of Surah Al-Kawthar? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرْ. When we were analyzing, I said that when you want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for something, how does Allah subhanahu wa ta'ala want you to thank Him? Salat. The best way to thank Allah subhanahu wa ta'ala is 2 rakat salat. It's called salat al-shukr, correct? Allah subhanahu wa ta'ala says, I've given you Kawthar, and if you want to thank me the way I want you to thank me is to pray, correct? Wanhar. We looked at that wanhar. What does that wanhar mean? Everyone translates that wanhar to mean sacrifice. Meaning what? I want you to pray and I want you to give sacrifice. But no, Tafsir Nur Sakhalain, Ta'wilul Ayat, they say that this wanhar, Imam Jafar Sadiq alayhi salam says that wanhar does not mean sacrifice. Wanhar means to raise your hands when you're doing takbiratul ihram. Raise your hands to the face. What does this mean? This means that before this verse was revealed, the Holy Prophet was not raising his hands to the face. Namaz, salat became wajib when? 1 year before Hijrah. Narrations, they say that the 5 times a day daily salat it became wajib 1 year before Hijrah. But the Holy Prophet was praying way before this verse was revealed. They were praying towards Jerusalem, that's absolutely true. But they were praying after this verse was revealed. Allah subhanahu wa ta'ala says, what? Ya Rasulullah, I want you to thank me in your salat. But now, the way I want you to thank me is how, when it comes to your salat, I want you to raise your hands to your face when you do your takbir. That means what? That means that before this, when the Holy Prophet was praying, there was no need to raise his hands. Now when Zahra is coming to this world, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, I'm going to change the way the Prophet prays. The prayer of the Prophet is complete, it's changed now. What? Something has been added. And Allah subhanahu wa ta'ala says, what? This action of raising your hand is the action that I love the most. The action that I love the most. Raising your hands. This takbir, without that takbiratul ihram, your salat does not even start. Without that takbiratul ihram, your salat does not even start. The first thing that we do for takbiratul ihram is we raise our hand. Meaning what? Without Zahra, that salat doesn't even begin. Without that, Allahumma salli ala Muhammadin. You look at Lady Zahra from the eyes of the Holy Prophet. What does the Holy Prophet say? He says, Ya Zahra, you are a part of me. You are part of my flesh. Anyone that's hurt you has hurt me. Anyone that's hurt me or annoyed me has annoyed Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone that's annoyed Allah subhanahu wa ta'ala is indeed a kafir. Is indeed a kafir. When this narration exists in Shia books, when this narration exists in Sunni books, then we need to find out who are those people that annoyed Lady Zahra.
It becomes necessary for us to find out who are those people that annoyed Lady Zahra. Why? Because we do know that she was annoyed. We do know that she passed her life. She left this world annoyed at certain individuals. What was it that they did that annoyed Lady Zahra? Why? Because the Holy Prophet says that anyone that's annoyed Lady Zahra has annoyed me. Look at the sentence. Anyone that annoys Lady Zahra has annoyed me. Anyone that's annoyed me has annoyed Allah subhanahu wa ta'ala. It's not the other way around. Shouldn't it be anyone that annoys Allah subhanahu wa ta'ala has annoyed me? Anyone that's annoyed Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest. We worship Allah subhanahu wa ta'ala. Anyone that's annoyed Allah subhanahu wa ta'ala has annoyed me. No, the Holy Prophet does not say this. He says what? He says that anyone that's annoyed Fatima has annoyed me. Anyone that's annoyed Fatima has annoyed me, and anyone that's annoyed me has annoyed Allah subhanahu wa ta'ala. There's a difference between those two. And there were people that annoyed Lady Zahra salawatullahi alaiha. What kind of annoyance? You bring fire to the doorsteps of Lady Zahra? Allah subhanahu wa ta'ala says, I don't ask of you any reward except that you love my nearest of kin. Except that you love my nearest of relatives. If you don't claim, or if you claim that Amir al-Mu'mineen is not a near relative of the Holy Prophet, he's the son-in-law, isn't a daughter considered to be a near relative? A daughter is considered to be a near relative. If a daughter is considered to be a near relative, then why are the companions of the Holy Prophet bringing fire to her doorstep? Why are the companions of the Holy Prophet threatening to burn that house down? Allah subhanahu wa ta'ala says, love my nearest of relatives. And these companions are bringing fire. They're threatening to burn the house down. They're threatening to enter that house. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Sallallahu alayka ya Siddiqatu Fatima. Sallallahu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Sallallahu alayka ya Gharib al-Ghuraba. Ya Aba Abdullah al-Hussain. Brothers, sisters, let's go to Medina and let's look at a house. This house is the household of Rasulullah, and there's smoke coming from this house. This smoke isn't because there's an oven that has been lit. This smoke is why? Because the house itself is burning to the ground. The companions of the Holy Prophet, they've come to the doorsteps of Lady Zahra and they threaten Lady Zahra and they say that if you don't bring Aliyah, then we're going to burn this house down. When they say this, Lady Zahra, she says that even if the daughter of Rasulullah is in this house, one of the companions, he says that even if the daughter of Rasulullah is in this house, we were going to burn this house down. And what did they do? They set fire to that door and they kicked that door down. Brothers and sisters, the narrations, they state that Amir al-Mu'mineen, he had hung a nail on that door. And what would he do? Whenever he would come back from battle, he would put his armor on that nail. And the narrations say that when that door was kicked down, it was that nail that struck Lady Zahra in her chest. It was that nail that struck Lady Zahra between those ribs. It was that nail that caused Mohsin to be shaheed. And when she fell down, she calls up, when she falls down, Imam Hassan alayhi salam, he's in the courtyard. He says what? He says that my brother Hussein did not see what I saw. I was in the backyard and I see that door fall down on top of Lady Zahra. And the first person to go and try to lift that door was 5-year-old Lady Zainab. She was calling to her mother. She's trying to lift that door, but she can't lift that door. The narration said that Fizda, she comes and she takes that door out. When they grabbed Amir al-Mu'mineen out of the house, Fizda she takes and she tries to wake Lady Zahra up, but she's not waking up. And she says to her, she says, "Oh, wife of Amir al-Mu'mineen," there's no reply. Then she says, "Oh, daughter of Rasulullah," there's no reply. Then finally she says, "Oh, mother of Hassan, oh, mother of Hussein." When she hears this, she wakes up, she gets up and she says,
Oh, Fizza, where's Ali? Can you tell me where Ali is? That's when she says, oh, Bint Rasul, they've dragged Ali out of here. The lyricians, they say that Lady Zahra, she quickly goes and she starts to yell and she says to them, if you don't leave Ali now, I will surely damn you all. I will curse all of you. The lyricians, they say that Lady Zahra, she goes behind Ali, and there came a point in time when she grabbed the back of Amir al-Mu'mineen's shirt. When she grabbed the back of Amir al-Mu'mineen's shirt, the narrations say that they were dragging Amir al-Mu'mineen. As they were dragging Amir al-Mu'mineen, Lady Zahra's feet, they were dragging on the ground. And there came a point where one of the enemies of the Ahlul Bayt, because Amir al-Mu'mineen got too heavy to drag, what does he do? He strikes at the hands of Lady Zahra. And when he strikes at the hand of Lady Zahra, it bruises and she shouts for her father. When she shouts for her father, then she says, if you don't leave him, I'm going to damn you all. Amir al-Mu'mineen, he tells Salman, Salman, go tell Zahra not to condemn them. Salman, go tell Zahra not to punish them. When Salman goes and he says, Ya Zahra, Amir al-Mu'mineen, he's told me to tell you not to curse them. Lady Zahra, she says, Ya Salman, he's my husband. I'll listen to him, I'll go back home. When Lady Zahra goes back home, Amir al-Mu'mineen, he comes back, and Lady Zahra, she says, Ya Ali, what has happened with them? Look what they're doing to you. She starts to cry, not about what happened to her, but about what happened with Amir al-Mu'mineen. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un wa la'natullah ala qawmil kafirin. मोहतरम सामीन, आपने भी आगा तैयब को सुना। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने आपके सामने फ़ज़ाइल व मसाइब बीबी पाक सैयदा पेश किए। आपसे गुजारिश करने के लिए मैं बस 2 मिनट लूँगा। आगा तैयब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एकेडमी चला रहे हैं। सैटरडे को जो है कुरान करीम की क्लास लेते हैं बच्चों की, और संडे ये अकायद समझाते हैं बच्चों को बड़े अच्छे अंदाज में। जब 2 साल पहले ये शुरू की थी एकेडमी इन्होंने, तो उस वक्त तकरीबन 10 या 11 बच्चे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन की दिलचस्पी ना होने की वजह से अपने बच्चों की तरबियत की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। इससे लगता यही है कि ऑनलाइन एकेडमी जो है वो किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं है। आप घर में बैठ के बस बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर ऑन करके दे दें तो वो घंटा बैठकर आगा के साथ अपने तरबियत के मराहिल से गुज़र सकते हैं। तो आप लोगों से इल्तमास है, यकीन करें, मेरे पहले एक बच्चा था, फिर मैंने दूसरा, फिर तीसरा। जब मैंने देखा इतने अच्छे अंदाज में ये बच्चों को समझा रहे हैं दीन, तो मैंने अपने तीनों बच्चों को अब उस अकेडमी में डाला हुआ है, और रियाज भाई के बेटे कासिम भी उसमें हैं। तो आप कोशिश करें, सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं सिर्फ, और 2 घंटे आप अगर बच्चों को इनके सामने बिठा देंगे तो, और कुछ भी ना हो तो एक आलिम के साथ अगर उनका रिलेशन भी बन जाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात है। जब भी उनको कोई मसला पूछना होगा, बेधड़क आके बेबाकी से वो इनके साथ बात कर सकेंगे। लेकिन अगर वो इनके साथ मुंसलिक नहीं होंगे, इनके साथ वाकिफ़ नहीं होंगे, तो जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो फिर शर्म करते हैं। वो कोई मसला, दीनी मसला जो उनको पेश आता है, वो आलिम से नहीं पूछ सकते। इसलिए मैंने ये अपने तीनों बच्चों को इनके साथ लगाया हुआ, ताकि वो इनके साथ जब वाकिफ़ हो जाएंगे, जब भी उनको कोई मसला होगा ज़िंदगी में, तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी दराज उम्र करे, लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको अता करे। तो ये मुस्तकबिल के हमारे लॉस एंजलिस के जो है आलिम भी होंगे और मुदर्रिस भी होंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चे आपके जो हैं इनके साथ जब वाकिफ़ होंगे, इनके साथ बैठकर बात कर सकेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अन्बिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातिमिन नबिय्यीन अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन वदना हबीबना व हबीब इलाहि रब्बिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीन अल-अत्हरीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन अल-मुहज्जलीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد शहज़ादे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि से मुताल्लिक़ आपने मेरे बेटे तैयब की तकरीर सुन ली। कौसर हैं क्या मतलब, यानी लाखों इंसान इस समंदर कौसर से कतरे उठाते जाएं तो उसमें कमी नहीं वाक़ होती है। एक कौसर के माने ये हैं, फ़ज़ाइल 1400 साल से बयान हो रहे हैं। किसी मंजिल पर कोई मुसन्निफ़, कोई ख़तीब, कोई शायर किसी इख्तितामी मंजिल तक नहीं पहुँचता। वो ये एतराफ़ करता है कि मैंने एक कतरा उठाया था समंदर से, जिस समंदर का नाम कौसर है। वो समंदर शहज़ादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहा हैं और यकीनन बचपने से जिस वक्त तौहीद का ऐलान कर रहे थे सरवर कायनात, 3 चीज़ों का तारुफ करा रहे थे। मक्के में 3 चीज़ों का तारुफ करा रहे थे। जैसे दावत जुल अशीरा है, उस वक्त शहज़ादी की विलादत नहीं हुई थी। सन 5 बेअसत को ऐलान नबुव्वत के 5वें साल शहज़ादी की विलादत हुई है। दावत जुल अशीरा 3रे साल की है। ऐलान नबुव्वत के 3रे साल सूरह शुअरा की आयत नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। मेरे हबीब खुले आम ऐलान रिसालत से पहले अपने ख़ानदान के उन गर्दन न झुकने वाली को बुलाकर उनकी गर्दनें झुकाओ, उन सरदारों को तौहीद का पैगाम पहुंचाओ। ये सन 3 बेसत है। ऐलान नबुव्वत के 3रे साल दावत जुल अशीरा है। ऐलान नबुव्वत के 5वें साल शहज़ादी की विलादत है। चूंकि ऐलान नबुव्वत इब्तिदा में खुफिया तौर पर 40 साल तक खामोशी से सरवर कायनात ने, बग़ैर इसके कि वो पैगंबर हैं, वो नबी हैं, वो खुदा की तरफ से आए हैं। ये सूरह वद्दुहा
ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। इसकी कमाल की तफसीर तफसीर अल बुरहान में कमाल की तफसीर, बाकी तफासिर में बहुत गलत और अजीब चीज़ है कि आप खो गए थे वापस लौटा दिया। आप अहले सुन्नत के यहाँ तो आप गुमराह थे, खुदा ने हिदायत की। एक गुमराह को नबूवत कैसे दे सकता है खुदा? अजीब बेवकूफ़ी है। ववजदका ज़ाल्लन, आपकी नबूवत आपके अंदर गुम थी, हमने वजाहत की। इस आयत के ये माने हैं, नबूवत मोहम्मद के अंदर गुम थी। मक्के वाले मोहम्मद को जानते थे, नबी को नहीं जानते थे। मोहम्मद को सादिक व अमीन कहते थे, नबी को नहीं। 40 साल तक खामोशी से अपनी सदाकत व दियानत व अमानत व इस्मत को मनवाया। 40 साल तक। इस 40 साल के अरसे में खा वो अबू सुफियान हो, अबू लहब हो, अबू जहल हो, ये सब के सब पैगंबर खुदा को क्या कह के पुकारते थे? सादिक व अमीन, सादिक व अमीन। उन्हें नहीं पता था इस सदाकत व अमानत के दरमियान में नबूवत है, वो ही नहीं जानते थे। और इसी की तरफ कुरान ने इशारा किया कि इसके दरमियान नबूवत गुम थी। हमने इसकी वजाहत की, हमने लोगों को आपकी तरफ रग़बत दिलाई। ये ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, आपके अंदर नबूवत गुम थी, खुदा ने उस नबूवत की तरफ हदा, हिदायत की। यानी कि पैगंबर खुदा जो खुद गुमराह हो, दूसरों की गुमराही के लिए कैसे दूसरों को हिदायत कर सकता? वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये कुरान की इन आयात के खिलाफ है। ये क्या कहता है? वो खुदा है जिसने मक्के वालों में से नबी को मबूस किया, फ़िल उम्मीन, मक्के वालों में से, रसूलन मिनहुम, उन्हीं में से एक रसूल को, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उसकी आयात की तिलावत करता। जो खुद जाहिल हो कैसे तिलावत कर सकता? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो खुद पाक न हो दूसरों को कैसे पाक कर सकता? युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, और इनको पाक होने के बाद इससे पता चलता है कि हाफिज़ कुरान बनना आसान है, कुरान का सीने में उतरना मुश्किल है। सीने में कुरान के उतरने के लिए पाकीज़गी शर्त है। आप रट सकते हैं, अब तोते की तरह आप हाफिज बन सकते हैं, मगर तफसीर कुरान के समझने के लिए क्या कहा? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, पाक होने के बाद कुरान की तालीम देते हैं ये नबी। पहले तिलावत करते हैं, उसके बाद जब वो पाक होते हैं, उनमें से जो पाक होते हैं उन्हें बिठा के कुरान की तालीम। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की तालीम के बाद जिन्हें मुनासिब समझते हैं उन्हें हिकमत की तालीम देते हैं। वल हिकमा, सूरह वाक़िअह जुमा। और इसी तरह से सूरह तगाबुन में भी आयत, सूरह आल इमरान में भी इस अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ इस तरह की आयत आई है। मगर सरवर कायनात जब ऐलान नबूवत आपने कर दिया तो 3 साल तक खुफिया तौर पर आप तबलीग करते रहे। जब सूरह ये आये जुल अशिरा नाजिल हुई, व अंजिर अशिरतिकल अक़रबीन, जब यह आयत नाजिल हुई तो सरवर कायनात ने अब ऐलान किया, कुरैश के सरदारों को बुला कर ऐलान किया। इस ऐलान के बाद आप तारीख उठा के देखिए, 2 साल के बाद जब शहजादी की विलादत होती है, मक्के के हालात को आप, उस माहौल को, उस सकाफत को, उस अरब यानी कल्चर को आप देखना चाहें तो सूरह तकवीर की इस आयत की तफसीर देखें। व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, अगरचे हम मुअद्दत है, मऊदत नहीं है तफसीर अल बुरहान में, मगर चूंकि दूसरी तफासिर में मऊदत लिखा। मऊदत के माने किसी को जिंदा दरगोर करना, मुअद्दत के माने मोहब्बत से बालातर ऐसी मोहब्बत कि जिसके लिए जान दी जाए, उसे मवद्दत कहते हैं। मकतब अहले बैत में अक्सर तफासिर में यह लफ्ज़ मुअद्दत है, मऊदत नहीं है। मगर चूंकि बच्चियां जिंदा दफनाई जाती थी इसलिए बास ने कहा मऊदत। जिंदा दफनाई जाने वाली बच्चियों से हम सवाल करेंगे तुम किस जुर्म में जिंदा दफनाई गई? मुजरिम से नहीं, उनसे सवाल करेंगे, वो मजलूम थे। यहां पर उस माशरे में, उस माहौल में जहां बच्ची को अपने लिए आरो नंगो आयब समझा जाता था, पूरे खानदान के लिए नंग समझकर रातों रात ले जाकर दफनाते थे, उस माशरे में खातमुल अंबिया के यहां एक बच्ची पैदा होती है
उस बच्ची को वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो पैगंबर यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ सैयद सरदार कायनात, आप मेरे नुमाइंदे हैं। कहीं पर वशम्स वदुहा का, यानी सरवर कायनात का जो तारुफ कुरान ने करा, मैं नहीं चाहता हूं तकरार हो ये गुफ्तगू। उस माहौल और उस माशरे में खातमुल अंबिया के यहाँ बेटी पैदा होती है, उसको गोद में लेके सरवर कायनात खाने काबा में आते हैं और इस बच्ची को दोनों रिसालत के हाथों पर उठा के इरशाद फरमाते हैं, ये फातिमा है, ये मेरी रूह है, ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा जिस्म है। उसके बाद उसी माहौल, उन्हीं सरदारों के सामने जो बच्चियों को जिंदा दफनाते हैं, उनके मुकाबले में कहते हैं, मेरी जान इस बच्ची पर निसार हो, मेरी जान इस बच्ची पर निसार हो। अभी अंते व उम्मी, मैं और मेरे माँ बाप तुझ पर निसार हो मेरी लाल। खातमुल अंबिया की गोद में एक फूल है, उसे गोदे रिसालत में लेकर मक्के में इस तरह से 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल की जिंदगी तक शहजादी को किस तरह से रिसालत में आपने तारुफ कराया। ब्याई नहीं, जिस तरह से ऐलान रिसालत के साथ ऐलान विलायत अली किया, ऐलान विलायत अली के साथ शहजादी की विलादत पर ऐलान इस्मत फातिमा किया। बिल्कुल दोनों साथ साथ, जिस तरह से बेटे ने गुफ्तगू की, बिल्कुल दोनों साथ। यानी मौलाए कायनात तौहीद, रिसालत, इमामत व विलायत और इस्मत व अजमत फातिमा, ये सरवर कायनात गोया ओहदे रिसालत में शामिल था कि अली की विलायत का भी ऐलान करें, शहजादी कौनैन की इस्मत व अजमत का भी ऐलान करें। ये जानते हैं एक आम आदमी उस माशरे में अगर एक बेटी का इस तरह से तारुफ कराता तो क्या कहते? कहते हैं पागल हो गया है। लड़की, शोरा के कसीर अशार हैं जो तफसीर नमूना में भी नकल किया। हर शायर कहता था बेटी गैर की है, वो हमारी है नहीं, कल को चली जाएगी, उसका हमसे क्या वास्ता। इस मौजू पर शोरा ने मारकतुल आरा शायरी की है, बेटी हमारी नहीं है, बेटी गैर की है, हमारा वारिस जो होगा वो सिर्फ बेटा होगा, सिर्फ बेटा ही होगा, बेटी हमारी वारिस नहीं है। उस माहौल, उस माशरे में ये माहौल कब से चला रहा? 4000 साल से ये माहौल बना हुआ है। इस माहौल में खातमुल अंबिया, सरदार अंबिया, गैर अगर ये कहता बच्ची को गोद में लेके मेरी जान तुझ पर फिदा हो, मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हो, तो लोग कहते कि ये पागल हो गया है। मगर जिसकी सदाकत और अमानत पर पहले एतराफ कर चुके हैं, जिनकी अजमत का एतराफ कर चुके हैं, जिनकी इल्मियत का एतराफ कर चुके हैं, रुकावट सिर्फ ऐलान नबुवत पर एतराफ रह गया। इस एतराफ के लिए सिर्फ ये एतराफ नहीं करना, मगर क्या कहने सरवर कायनात की रविश के, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वो कुछ भी कहें, एक तरफ तौहीद और रिसालत के साथ इमामत व विलायत का ऐलान, दूसरी तरफ जिस तरह से हम देखिए दीन एक अमली है, कौली है। कौली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली व औलादुहुल मासूमीन हुज्जजुल्लाह, ये कौली है। अमली क्या है? अमली आप जब सजदे में जाकर ऐलान रुबूबियत करते हैं, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, अमलन सजदे में झुक कर अपनी पस्ती का ऐलान करते हैं और कौलन उसकी बुलंदी का ऐलान करते हैं। यहां पर सरवर कायनात अमलन गोद पे एक बच्ची को लेकर खाने काबा के दरवाजे पर आकर उन सरदारान कुरैश के सामने जो इफ्तिखार करते थे, हमने बच्चियों को दफनाया, हमारे बेटे वारिस हैं, बेटियां गैर की हैं, उनके सामने
एक मासूम बच्ची को गोद में लेकर जिस हस्ती से तकाजा किया जाता है, सूरज को पलटाइए, पलटा देते हैं। जिस हस्ती से तकाजा किया जाता है, हाँ आप ऊपर के नुमाइंदे हैं, चांद को दो टुकड़े कीजिए। सूरह कमर और सूरह इंशिका, ये इंशिका कमर के सिलसिले में दो सूरतें कुरान करीम में जो तकाजा करते हैं कि इस खजूर के दरख्त को चलने का हुक्म दे, चल के आ जाए। सरवर कायनात हुक्म देते हैं, खड़ा दरख्त चलता हुआ चला आ रहा, चांद दो टुकड़े हो रहा, सूरज पलट रहा। कायनात का निजाम जिसकी मुट्ठी में है, उस मुट्ठी में एक बच्ची है। पैगंबर खुदा ये तारुफ कराते हैं कि ये निजाम है शमसी और कमरी जो इस मुट्ठी में है, ये इस हथेली में जो बच्ची है, ये इसके हाथ में। ये तारुफ करा रहे हैं पूरी कायनात के सामने, जिसको मैं मोहम्मद कहता हूं खातमुन नबीयीन, मेरे माँ बाप तुझ पर निसार हो। तो ये इस तरह से नहीं कह रहा हूं कि एक आम बच्ची है, नहीं, इस कायनात का निजाम। इसलिए सूरह ज़ुहा क्या दिया, जैसे मैं अभी मेरे बेटे से आपने सुना, 12 बेटे दिए याकूब को, हजरत नूह को 4 बेटे दिए थे, एक बेटा मुनहरिफ हुआ, 3 बेटे साथ थे। इसी तरह हजरत आदम को 120 औलादें थी, फिर उनकी जिंदगी में 40,000 तक औलाद पहुंची। आदम से लेकर हजरत ईसा तक अनबिया अलैहिस्सलाम को किसी को हुकूमत से, किसी को औलाद से नवाजा। मगर यहां कुरान करीम ने सरवर कायनात से इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। मेरे हबीब, आपसे परवरदिगार आलम कभी मुनक़ते नहीं हो सकता। वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आखिरत आपके लिए इब्तिदा से बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, 10 दफे इस पर मैं गुफ्तगू कर चुका हूं। और इसी आयत पर 4 खुतबे हैं अमीरुल मोमिनीन के। कोफे में जब भी मिंबर पर जाते थे, जानते हो मुसलमानों, कुरान करीम में हम अहले बैत के लिए बाइस इफ्तिखार एक आयत है, तो सबके कान खड़े हो जाते थे। खवारिज हों, मानने वाले हों, चाहने वाले हों, कुमैल इब्न ज़ियाद, तिरमा इब्न हदीस, आसा इब्न सोहान, मालिक अश्तर नखी, चाहने वाले अली पर जान देने वाले हों या मुखालिफिन हों, सब कान खोल कर सुनते थे कि वो आयत कौन सी जो अहले बैत के लिए बाइस इफ्तिखार है। तो मौला फरमाते थे ये आयत है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरे हबीब, सारी कायनात मेरी रिजा के लिए, अनबिया कट गए, जकरिया आरे से चीर गए, यहया ज़िबा हो गए, और यूसुफ कुएं में कूदे और दरिया में कूदे मूसा, और ईसा तख्तेदार पर ले जाए जाने वाले थे, मैंने ऊपर उठाया। मगर मेरे हबीब, इन सब के मुकाबले में वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐसी खुदाई तुझे दूंगा ये जिससे तू राजी हो। सारी कायनात मेरी रिजा की कोशिश करती है और मेरी ख्वाहिश है कि तू मुझसे राजी हो। अजब ये है, हम नमाज काई के लिए पढ़ते, बोलते जाइए, क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। रोजे क्यों रखते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। हज क्यों करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। जो कुछ भी नेकी करते हैं काई के लिए करते हैं? उसकी रजा के लिए। अल्लाह पलट के बंदे से कह दे मेरी खुदाई ले ले, तू मुझसे राजी हो, उस बंदे की अजमत और उस बंदे का मकाम, उस बंदे की बुलंदी, वो बंदा इस बच्ची से कह दे मेरी और मेरे माँ बाप की जान तुझ पर निसार। याद रखिए, वमा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर खुदा मेरी तरह आपकी तरह कोई जज्बाती इंसान नहीं है। मोहब्बत के जज्बात में आके बेटी से इजहार मोहब्बत किया नहीं, यहां पर जो जुमले निकलते हैं वो वही होती है, जज्बाती नहीं होते। ये जज्बाती नहीं, जब वही होती है तो खुदा कह रहा, कह दो फातिमा तुझसे मैं कुर्बान हो जाऊं। ये एक बाप के जज्बात नहीं है कि आप ये कहते हैं हाँ आत्फो लुत्फो करम वालिदैन की फितरत में है, इसलिए इजहार फितरत किया, उसमें कौन सी खास बात है? ए बंदे खुदा,
तूने रसूल अकरम को अपना जैसा समझा? रसूल अकरम सोते भी तो वही की बुनियाद पर, जागते हैं तो वही की बुनियाद पर, चलते हैं तो वही की बुनियाद पर। वमा यंतिको, नुत्क नहीं करते, जबान नहीं खोलते वही के बगैर। जब जबान नहीं खोलते वही के बगैर, तो अगर किसी बच्ची से कह दे मैं भी, मेरे माँ बाप भी तुझ पर फिदा हूं, तो खुदा कह रहा हबीब कह दे मैं फिदा हो जाऊं। खुदा के कहने पर ये जुमले सरवर कायनात कह रहे हैं। क्या माने इसके? अब की इस जुमले के माने समझे आप? अगर समझते तो आप उछलते। सरवर कायनात से क्या फरमाया? वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, खुदा वो सब कुछ देगा ताकि तू राजी हो, सब कुछ देगा तू राजी हो। उस पैगंबर से ये कह दे, हाँ कह दीजिए मैं और मेरे माँ बाप तुझ पर निसार हूं, यानी सारी खुदाई तुझे देगा, तू राजी हो। उस पैगंबर से ये कह दे कि हाँ कह दीजिए मेरे बाप, मैं और मेरे माँ बाप तुझ पर, तो इसके माने खुदाई निसार हो रही है फातिमा पर, खुदाई निसार हो रही है फातिमा पर। क्यों ना हो? इसलिए कि तौहीद की बका फातिमा है, तौहीद की बका फातिमा है। ऐसे नहीं कहा था ख्वाजा अजमेरी ने मौला हुसैन के बारे में, दीन अस्ते हुसैन, दीन पना अस्ते हुसैन। तो क्या मतलब है? कहां से? हुसैन मादन फातिमा से, हसन मादन फातिमा से। इमामत पूरी की पूरी, जैसा कि अभी मेरे बेटे से सुना, सिर्फ सरवर कायनात, मौलाए कायनात शहजादी से अफजल हैं। और वाकई कमाल अकीदत देखिए, शहजादी की अकीदत का कमाल देखिए मौलाए कायनात से। याद रखिए ये शोहर होने की बुनियाद पर नहीं है, विलायत का दिफा एक फरीज़े इलाही समझकर शहजादी ने अंजाम दिया। शोहर होने की बुनियाद पर नहीं, फरीज़े इलाही समझकर विलायत का दिफा किया है। इस विलायत की अजमत को जान लीजिए, जिसकी पहली शहीद फातिमा ज़हरा है। इस्लाम की बका में पहला खून अम्मार यासिर की मां का खून था, सुमैया का, और ईमान की बका का पहला खून फातिमा तो ज़हरा का है। इस बिना पर आप विलायत की अजमत को देखिए। दीन इस्लाम के लिए खातून ने जान दी मक्के में, वो कौन थी? अम्मार यासिर की वालदा। वह मगर विलायत की बका के लिए किस हाल, अभी मेरे बेटे से आपने सुना पूरा। जिस हालत में, मैं सिर्फ मसाइब के तौर पर नहीं, मौला इमाम सादिक सलाम अलैहि कोफे में तशरीफ फरमा थे। आपके पास शिकायत आई, मौला आपकी एक चाहने वाली थी, मोमिना थी, पुलिस उठा के ले गई है। कहा क्यों? पता नहीं क्यों लेके गए, बनु अब्बास की हुकूमत कायम हो चुकी थी, उनका मंसूर दीवानगी का दौर, बहुत खबीस तरीन इंसान, उठा के ले गई है। तो हजरत ने फरमाया चलो मस्जिद साला चलते हैं, उनके लिए दुआ मांगते हैं। हालांकि मस्जिद कोफा में थे। मस्जिद कोफा ये वो मस्जिद है जहां सबसे पहले इस पूरी जमीन पर खुदा के लिए सजदा मस्जिद कोफा में हुआ। मस्जिद कोफा की बहुत बड़ी अजमत है। मस्जिदुल हराम से पहले मस्जिद कोफा में सजदा हुआ बारगाह खुदा के लिए, ये वो मस्जिद है। जब यहां से हजरत उठ के चले जा रहे हैं दुआ मांगने के लिए, कहा? मस्जिद साला। मस्जिद साला आप गए हैं, 1 मील के फासले पर है, मस्जिद कोफा के मुकाबले में मस्जिद साला जाते हैं दुआ मांगने के लिए। और उस मस्जिद साला की अजमत यह है कि मौला इमाम ज़मान रूहुल फ़िदा हर बुध को उस मस्जिद में होते हैं, और यकीनन होते हैं। यकीनन कई मराजे ने हज़रत की ज़ियारत से का शरफ़ हासिल किया है, 40 बुत आमाल करके, और उस बुत, हर बुत को हज़रत यकीनन मस्जिद साला में होते हैं। एक मस्जिद साला मौला इमाम ज़मान रूहुल फ़िदा का दारुस सल्तनत है। 2 मस्जिद साला के अंदर तमाम अनबिया के घर थे। हज़रत इब्राहिम खलील के बाद के जितने अनबिया थे उन सब के घर थे, उनके निशानात भी हैं। जब आप जाते हैं तो जिनके निशानात ज़ाहिर है वहाँ नमाज भी पढ़ते हैं। मस्जिद साला चलते हैं। मस्जिद साला जा रहे थे, रास्ते में इत्तला आई कि वो रहा हो गई। हज़रत पलट आए। जब हज़रत पलट आए
तो वो मोमिना उनको बताया गया कि हज़रत तो आपकी खातिर परेशान थे, दुआ मांगने के लिए जा रहे थे। वो बेचारी रोती हुई आई, हज़रत के पास जब आई उस सलाम किया, हज़रत ने जवाब दिया क्या बात है, क्यों तुझे पकड़ के पुलिस ले गई थी? मौला मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं खाना लेके जा रही थी, अजीज़ के घर रास्ते में ठोकर खा के मैं गिर पड़ी थी, जब गिर गई तो मेरी पसली टूट गई थी, मेरी पसली टूटने के बाद मौला मेरी सांस बंद हो गई थी, उस वक्त पता चला कि शहजादी के साथ क्या हुआ, वरना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़हरा पर क्या गुजरी। जैसे मेरी पसली टूटी मेरी ज़बान से ये लफ्ज़ निकला, खुदा उमर पर लानत करे जिसने फातिमा की पसली तोड़ी। तो पुलिस साथ थी, वो मुझे पकड़ के ले गई थी, तो मुझे रहा किया। हज़रत ने फरमाया हालात देखती हो, उसके बावजूद कहा मौला मैं क्या करूं, मेरी पसली टूटने के बाद बेसाख्ता मेरी ज़बान से ये जुमला निकला, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था पसली टूटती है तो तकलीफ़ क्या होती है। अमलन उस तकलीफ़ से जब गुजरी हूँ तो फितरतन मेरी ज़बान से ये जुमला निकला और मुझे पकड़ के ले गई। और मुझे फिर वो काजी मुनासिब था, उसने कहा छोड़ दो, रहा कर दो खातून है। मैं चली आई, मुझे पता चला आप दुआ मांगने के लिए आपकी खिदमत में। तो मैं आप सर्च करूँ, हाँ शहजादी कौनैन किस हालत में गई मौला कायनात को लेने के लिए? सीना भी जख्मी है, पहलू भी टूटा हुआ, पसली टूटी हुई है, सीने के ऊपर कील का दाग है। जब होश में आई हैं पहला सवाल क्या किया आसमा बिन्त उमैस से, आसमा आईना अली, अली कहाँ है? कहा शहजादी लेके गए हैं। कहा मुझे थामो, मुझे लेके चलो। उस जख्मी हालत में मौला कायनात को लेने गई है शहजादी, उस जख्मी हालत में, शिकस्ता पहलू, उस जख्मी हालत में मौला कायनात को अजब है मोहब्बत विलायत। शहजादी कौनैन जब गई हैं तो जाहिर है 4 खवातीन बनु हाशिम ने पकड़ लिया था, हाथों को थामा था और शहजादी चल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, कदम नहीं उठा सकती थी। उठा के लेके गए हैं, दर मस्जिद पर जब गए हैं हाथों को बुलंद करके कहा अली को छोड़ दो वरना मैं बद्दुआ दूंगी। तो जब शहजादी कौनैन की इस मंजर को देखा अमीर मोमिन सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया सलमान अदरिक फातिमा, सलमान फातिमा के पास जाओ, जाके कह दो बद्दुआ न दीजिए, बाबा ने मना किया बद्दुआ न दीजिए। जब सलमान आया शहजादी से कहा शहजादी कौनैन मौला कायनात फरमाते बद्दुआ न दीजिए। तो शहजादी ने रोकर कहा मैं अली को लेके जाऊंगी, मुझे अगर अली नहीं दिया तो मैं बद्दुआ दूंगी। अली का हुक्म सर आंखों पर, मगर अली को यहाँ से लेके जाऊंगी। ये कहकर जब शहजादी रोने लगी तो पूरा मशमा रोने लगा तड़प तड़प के, मगर कोई नहीं था उठ के उस मलून से कह दे तू फातिमा को क्यों रुला रहा। रो सब रहे थे मगर कोई नहीं था उठ के कह दे फातिमा को तू क्यों रुला रहा। और पैगम्बर खुदा की कब्र मुकद्दस में सरवर कायनात देखते हैं फातिमा को क्यों रुला रहा, मगर शहजादी मौला कायनात को लेकर आई है। आप बस जरा ये 2 जुमले, जब मौलाए कायनात को, अब मैं मसाब शुरू कर चुका हूँ, जब मौलाए कायनात को वापस घर लेकर आई हैं अमीर अल मोमिनीन को बिठाकर उसी जख्मी हालत में अली का तवाफ करती है फातिमा। अली से कहती है या अली क्या तकलीफ दी आपको, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो गिर गई थी जमीन पर, मुझे नहीं पता चला आपको कब लेके गए अली, आपको लेके गए, मैं गिर गई थी जमीन पर। एक मर्तबा अमीर अल मोमिनीन ने शहजादी कौनैन को बिठाया, गले से लगा कर कहा ज़हरा अगर तुम नहीं होंगी तो मेरा क्या हाल होगा, इस वक्त तुम ढाल हो मेरे लिए, अगर तुम नहीं रही तो मेरा क्या हाल होगा, अली अकेला रह जाएगा। इन जुमलों को देखिए। और उसके बाद अमीर अल मोमिनीन 30 साल तक पैगंबर खुदा हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा पर 1 साल तक रोते रहे, 1 साल तक रोते रहे। मगर आप जानते हैं मौलाए कायनात कितने अरसे तक रोते रहे? 30 साल, 30 ईयर्स। एक शख्स ने पूछा या अली आपने खजाब क्यों नहीं लगा? कहा मैं गम में हूँ,
कहा किसके गम में? कहा फातिमा के गम में। जिस फातिमा का गम अली 30 साल तक मनाया, आप जरा सोचिए उस फातिमा पर क्या गुजरी होगी। आखिर अली ऐसे ही 30 साल तक तो फातिमा पर नहीं रोए हैं। जब शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जमीन पर बैठ गई, मौलाए कायनात ने शहजादी कौनैन को एक बच्चे की तरह, जाहिर है 18 साल, मगर जिसमें अक़दस इतना नहीफ हो चुका था कि इतना नहीफ जिनाजे को दोनों हाथों पर फकत मौलाए कायनात ने दोनों हाथों पर जनाजे को उठाया है। आप इससे अंदाजे कीजिए कि शहजादी की हालत क्या हुई थी। जब जमीन पर बैठ गई तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या ज़हरा, मेरे घर में आकर आपको राहत नहीं मिली, तकलीफें देखी हैं। शहजादी फरक रकत ऐनाहु मिनद्दुमू व बका बुकान शदीदा वकालत या अली, ज़ारो कतार से शहजादी रोते हुए कहा, या अली, मुझे यही गुर्बत पसंद थी, मैंने इस गुर्बत को पसंद किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ज़हरा, कनीज़ का इंतज़ाम नहीं कर सका, हाथों में छाले पड़ गए, हसनैन की हिफाजत तुमने की, घर का सारा काम। जब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, 9 साल तक मेरे साथ रही हो, क्या मुझसे राजी हो? जब ये जुमला सुना तो शहजादी, शेख मुफीद लिखते हैं, तड़प के जमीन पर गिर गई। या अली, आप अल्लाह की रिजा है, आपसे कैसे मैं नाराज हो सकती हूँ? मैं आप मेरे लिए आप अल्लाह की रिजा है। या अली, मैं आपसे राजी हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है। हाँ या ज़हरा, क्या? ये बताइए, मैं तो राजी हूँ, आप भी मुझसे राजी हैं। अमीर अल मोमिनीन शेख मुफीद लिखते हैं, जुमले पर तड़प के जमीन पर गिरे रोते हुए, कहा, ज़हरा, मैं आपसे राजी हूँ। जब शहजादी ने यह सुना, मैं आपसे राजी हूँ, अब शहजादी ने 3 वसीयतें की। या अली, मेरे बच्चे छोटे हैं, उम्म कुलसूम 3 साल की है, ज़ैनब 5 साल की, हुसैन 6 साल के, हसन 7 साल के, ये मासूम बच्चे हैं, इनके लिए माँ की ज़रूरत है। आप बाहर होते हैं, कोई माँ बन के मेरे इन यतीम बच्चों की देखभाल करे, ऐसी खातून से मेरे बाद शादी कर लीजिएगा। नाम भी लिया तो हज़रत ने फरमाया, या ज़हरा, मैं आपकी वसीयत पर पूरी तरह अमल करूँगा। दूसरी वसीयत ये थी, या अली, मेरे जनाजे को निस्फ शब में उठाइएगा और मेरे जनाजे में किसी को शरीक होने नहीं दीजिएगा, तन्हा लेकर बकी लेके चले जाइएगा और तन्हा मुझे कब्र में उतारिएगा, और कब्र में उतारने के बाद थोड़ी देर मेरे पास रुक जाइएगा। मुझे आपकी जुदाई बहुत ही मुश्किल है, आप मुझे छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा। या अली, जब घर पर आ जाए तो मेरी ज़ैनब यकीनन मुझे नहीं पाई, रो रही होगी, मेरे बच्चों को गोद में लेकर उनको प्यार कीजिएगा। मौलाए कायनात ने सारी वसीयतें सुन ली और सुनने के बाद शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ले की तरफ चली। वो मुसल्ले की तरफ जाते हुए इरशाद फरमाया, देखो फिज़ा, जब मेरी आवाज़ बुलंद हो तो समझ लेना मैं मौजूद हूँ, जब मेरी आवाज़ बंद हो तो समझ लेना मैं चली गई हूँ बाबा के पास। जब तक आवाज़ थी, फिज़ा और आसमा बिन्त उमैस समझ रहे थे शहजादी अभी हैं, मगर जब आवाज़ बंद हो गई, अंदर जाकर देखा तो चादर अपने सर अक़दस पर चादर तथीर को सर अक़दस पर डाला है और खुद क़िबला रू होकर शहजादी कौनैन लेट गई हैं। फिज़ा ने आवाज़ दी, आवाज़ नहीं आई। आसमा बिन्त उमैस ने आवाज़ दी, आवाज़ नहीं आई। आसमा बिन्त उमैस ने तड़प का आवाज़ दी, या बिन्त रसूलिल्लाह, आवाज़ नहीं आई। और जब फिज़ा और आसमा बिन्त उमैस दोनों आजिज़ आ गए तो पता चला शहजादी कौनैन की रूह मुक़द्दस परवाज़ कर चुकी है। ऐसे में दौड़ते हुए हसनैन आए, सरवर कायनात के रोज़े पर दुआ मांगने के लिए गए थे। आसमा बिन्त उमैस दरवाजे पर गई ताकि उनको खाना खिलाए, बाद में माँ का बताए, मगर जब जाकर कहा, मेरे नूर नज़र, माँ अभी नमाज में मसरूफ़ है, आप पहले खाना खा लीजिएगा। तो मौला इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, आसिमा, तुम्हें पता हम माँ के बगैर हमने कब खाना खाया? हम तो माँ के बगैर खाना नहीं खाएंगे। मौला हुसैन दौड़ के अंदर गए हैं, आवाज़ दी, अम्मा। जब शहजादी की आवाज़ नहीं आए, मौला हुसैन तवाफ करते जा रहे थे, मौला हसन भी तवाफ करते जा रहे थे, मौला कायनात मस्जिद में थे। मौला हसन दौड़ के गए और अमीर अल मोमिनीन को आवाज़
दी। अमीर अल-मोमिनीन दौड़ कर आए हैं। बाखुदा इस मंजिल पर अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं फातिमा के जनाजे पर मैं सब्र खो चुका था। मैं जब आया तो फातिमा की रूह परवाज कर चुकी थी। फातिमा का सर उठा के जानू पर रखा, मैंने गौर से देखा गोया फातिमा मुझसे बात ऐसे में हसन मुश्तबा और हुसैन आए, तवाफ करते हुए रो रहे थे। मासूम बच्चियां आई माँ के गिर तवाफ करती हुई रो रही थी। एक मर्तबा यो मसाइब हैं, कसम खुदा की जिन मसाइब पर मरसे खुद शहजादी ने पढ़ा है। दर दीवार के बीच में जब गिरी थी तो दो मरसे के बंद खुद अपने मरसे के पढ़े थे। अब या अबा सुब्बत अलैया मसाइब लवन्ना, बाबा जिस दरवाजे पर दिन में 9 दफा सलाम के लिए आते थे उस दरवाजे को आग लगाई गई और मुझ पर गिराया जा चुका। बाबा मेरी पसली टूट गई और मेरा मोहसिन शहीद हुआ। ये मरसे के दो बंद खुद शहजादी कौनैन के। जब अमीर अल-मोमिनीन ने देखा, अब जब गुस्ल का इंतजाम किया, शहजादी को गुस्ल देने के लिए आसमा बिनते उमैश और फिज़्ज़ा ने मदद की। बस 2 जुमले अरबाब अज़ा शहजादी हल्लाल मुश्किलात हैं। इन आंसुओं के बीच में आप आवाज़ दीजिएगा मौलाए कायनात को ज़हरा का वास्ते देकर, या अली जिस ज़हरा पर 30 साल तक रोते रहे हैं उस ज़हरा का वास्ता है। आप देख लीजिएगा आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अमीर अल-मोमिनीन ज़हराए मर्ज़ा का वास्ता रद्द नहीं करते हैं, ये नहीं देखते बोलने वाला कौन है क्या किया है, मगर जब फातिमा का वास्ता देकर अमीर अल-मोमिनीन को आवाज़ दे, या अली उस फातिमा का वास्ता है जो शिकस्त पहलू आपको लेने के लिए मस्जिद आई थी। आप देख लीजिए जब अब शहजादी कौनैन को गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया, ताबूत में जनाज़े अक़दस को रखा। रखने के बाद पूरा मदीना आया ताज़ियत के लिए और पूरे मदीने ने कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन तदफीन कब होगी। अमीर अल-मोमिनीन सलाम अलैहि ने फरमाया तदफीन के लिए अभी ताख़ीर है, खुदा आप हज़रात पर रहम करें, आप लोग चले जाए, आप लोग अभी तदफीन ताख़ीर है, अभी तदफीन नहीं होगी, आप लोग चले जाएं। सब चले गए। निसफ शब को शहजादी की वसीयत के मुताबिक सिर्फ अमीर अल-मोमिनीन थे। एक रिवायत में सलमान, अबू ज़र और मिक़दाद भी थे। एक रिवायत में ये थे ज़रूर मगर जनाजे में शरीक नहीं थे, इसलिए कि शहजादी की वसीयत थी या अमीर अल-मोमिनीन तन्हा मेरे जनाजे को लेकर चलिए। हाँ, 2 मासूम बच्चे थे हसन और हुसैन, पीछे पीछे चले जा रहे थे। माँ का जनाजा अमीर अल-मोमिनीन ने उठाया हुआ था और जब बकी के किनारे गए तो अमीर अल-मोमिनीन ने खुद कब्र में उतरा और हाथ में बच्चे की तरह, एक 6 महीने के बच्चे का जनाजा जैसे लेते हैं, हाथ में जनाजे को लेकर अमीर अल-मोमिनीन कब्र में उतरे हैं। और जब कब्र में उतरने के बाद जनाजे अक़दस को एक तरफ रखा और रख कर अमीर अल-मोमिनीन ने जो आवाज़ दी है, फातिमा कल्लिमीनी अना अली, फातिमा मुझसे बात कर लो मैं अली हूँ। अजब है यहाँ पर अमीर अल-मोमिनीन का सब्र। मौलाए कायनात फरमाते फातिमा मुझसे बात कर लो मैं अली हूँ। 2 दफा जब हजरत ने आवाज़ दी तो शेख तुसी ने लिखा है और अल्लामा तबरसी ने एहतिजाज में लिखा है, एक मरतबा जनाजा हरकत में आया, आवाज़ आई अली वापस चले जाइए, दरवाजे पर मेरी ज़ैनब गिर गई है, वापस चले जाइए, मेरी बेटी उम्मे कुलसुम दरवाजे पर रो रही है। अमीर अल-मोमिनीन जनाज़े अक़दस को छोड़ के कब्र को बंद करके आए तो दर अक़दस पर शहजादी ज़ैनब गिर गई हैं। माँ को पुकारते पुकारते वहीं पर गिरी हुई है और उम्मे कुलसुम दरवाजे पर लेट कर आवाज़ दे रही है। आए अमीर अल-मोमिनीन, शहजादी ज़ैनब उठी, आके दामन आबा को पकड़ के कहा बाबा अम्मा कहाँ है, और उम्मे कुलसुम ने पूछा बाबा अम्मा कहाँ है। जब अमीर अल-मोमिनीन ने दोनों बच्चियों को गोद पे लिया, दोनों के सर पर हाथ रख के कहा खुदा के हवाले करके आया हूँ, रसूल अकरम के हवाले करके आया हूँ। मातम हुसैन।
आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। थी मोहम्मद की वो बेटी, थी मोहम्मद की वो बेटी, जिसकी टूटी पसलियां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। थी मोहम्मद की वो बेटी, थी मोहम्मद की वो बेटी, जिसकी टूटी पसलियां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। जिसका इस्तक़बाल करते थे रसूले मुस्तफा, जिसका इस्तक़बाल करते थे रसूले मुस्तफा, आज उसकी दरबार में ज़हरा को लाया गया, आज उसकी दरबार में ज़हरा को लाया गया। जी जो मिक़दार नमा की, जी जो मिक़दार नमा की, उसको लाया बया, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी ज़ुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। जलते दरवाजे के नीचे ज़ौजे शेरे खुदा, जलते दरवाजे के नीचे ज़ौजे शेरे खुदा, आ गया शरब में ज़ालिमों का काफ़िला, आ गया शरब में ज़ालिमों का काफ़िला। मोहसिन मज़लूम पर तो, मोहसिन मज़लूम
खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। थी मोहम्मद की वो बेटी, थी मोहम्मद की वो बेटी, जिसकी टूटी पसलियां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। आके लिपटे बाबा बाबा करके हसनैन हसी, आके लिपटे बाबा बाबा करके हसनैन हसी, जब हटाया जालिमों ने कांप जाती थी ज़मीन, जब हटाया जालिमों ने कांप जाती थी ज़मीन। बाप की मज़लूमियत पर, बाप की मज़लूमियत पर रो पड़ी थी बेटियां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। एक सहाबी पूछता था वाकया क्या हो गया, एक सहाबी पूछता था वाकया क्या हो गया, लश्कर असहाब किस पर हमलावर हो गया, लश्कर असहाब किस पर हमलावर हो गया, क्यों अली के घर के आगे, क्यों अली के घर के आगे ढेर की है लकड़ियां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। ले चले मजलूम अली को खींच कर दरबार में, ले चले मजलूम अली को खींच कर दरबार में, ये सजा है दरबार में, ये सजा है को के मिली इल्हार में, घर जलाया जुल्म ढाया, घर जलाया जुल्म ढाया, और गले में रस्सियां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। वशे ज़हरा घर के सगन में मचा कोहराम है, वशे ज़हरा घर के सगन में मचा कोहराम है, घर के बाहर और अंदर एक मजमे आम है, घर के बाहर और अंदर एक मजमे आम है, होश में आई तो चीखी, होश में आई तो चीखी, है मेरे है दर का दुख भरी एक दास्तां, आज खोलेगी जुबान,
दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। मैं ज़िया कैसे मुकम्मल कर सकूँगा दास्तां, मैं ज़िया कैसे मुकम्मल कर सकूँगा दास्तां, जिसमें बिखरा ज़ुल्म इतना कम पड़े मेरा बयां, जिसमें बिखरा ज़ुल्म इतना कम पड़े मेरा बयां, जिसके गम में रो रहे हैं, जिसके गम में रो रहे हैं आज कुल सुन सुना, दुख भरी एक दास्तां आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां, दुख भरी एक दास्तां आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। थी मोहम्मद की वो बेटी, थी मोहम्मद की वो बेटी जिसकी टूटी पसलियां, दुख भरी एक दास्तां आज खोलेगी जुबान, दुख भरी एक दास्तां। या हुसैन, 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 या के घर के बाहर कैसा हजूम है, ज़हरा 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 के घर के बाहर कैसा हजूम है। रस्सियों में जकड़े हैदर, रस्सियों में जकड़े हैदर कैसा हजूम है, ज़हरा के घर के बाहर कैसा हजूम है, ज़हरा के घर के बाहर कैसा हजूम है, ज़हरा के घर के बाहर कैसा हजूम है। सुनते हैं कि इस दर पर रुकते थे पैगंबर भी, सुनते हैं इस दर पर रुकते थे पैगंबर भी, इसका हया है वाजिब असहाबे नबी पर भी, घर में नहीं पैगंबर, घर में नहीं पैगंबर कैसा हजूम है, ज़हरा के घर के बाहर कैसा हजूम है, ज़हरा के घर के बाहर कैसा हजूम है, ज़हरा के घर के बाहर
मिला है दौर कैसा, शोलों में है गिरा दे, शोलों में है गिरा दे, ऐसा हजूम है Hussain
अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका जाफर इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मौलाना गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका मुईन अल-ज़ुअफ़ा वल-फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्स अश-शमूस अनीस अन-नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ अत-तूस, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका अली इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब अल-असर वज़-ज़मान, अल-लमान 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 मिन फितनत अज़-ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफत अर-रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल-जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीलन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोमिन आप हज़रात से एक इंतहाई मुअद्दबाना मुखलिसाना दरख्वास्त है। कोर्ट में एक खातून थी, अभी जो पाकिस्तान से आया हूँ, फातिमा उनका नाम, इत्तेफाक से शहजादी कुरैन का नाम, और दिन भी ऐसा है। 5 यतीम बच्चे छोड़कर उनके वालिद का इंतकाल हुआ है। 5 यतीम बच्चे हैं। अभी मैं तकरीर करने वाला था, उनका फ़ोन आया था। मैंने वादा किया था मैं कुछ करूँगा। पूरे सिंध में, सुबह सिंध में 11 साल का बच्चा है, फर्स्ट आया, फर्स्ट पोजीशन लेकर, कोई इम्तिहान हुआ था। अब लाहौर भेज रहे हैं, तो वहाँ से वो फर्स्ट पोजीशन लेने के बाद उसको कोलालमपुर भेजेंगे, और उनकी माँ से कहा कि 1,70,000 आप दें, बाकी हम देंगे। और बेचारी वो रो रो के कह रही, आगा मैं कहाँ से दूँगी। शौहर अच्छी पोस्ट पर था, उसकी वजह से, कोरोना की वजह से उस बेचारे का इंतकाल हुआ है। 5 यतीम बच्चे हैं। किसी एक यतीम की एक आदमी भी कफालत करे, $100 दे के, तो यकीन जानिए सूरह वद्दुहा की मैंने तिलावत की है, उसका मिसदाद बन जाएगा। यतीम बच्चे हैं, कोशिश कीजिए किसी एक यतीम बच्चे की कफालत करने की, और ख़ास तौर से उस बच्चे की ज़्यादा खर्चा नहीं है, $100। बहुत शुक्रिया आपका। $100 हमारे कामरान जाकिर ने, $100 महमूद के, तो कुल मेरा अंदाजा है कि $600 खर्च होंगे। 1,70,000 उस बच्चे को देने के लिए, फिर 1 लाख उसकी जेब में, जेब खर्च के लिए, तो कुल $2,70,000 का खर्चा। ये $1,000 में गालिबन $1,000 गिर गया है। $1,000 में उस बच्चे का खर्चा पूरा हो जाएगा। इस सिलसिले में आप हज़रात से, जिनको खुदा ने दिया है, पूरी कोशिश करें। मौलाए कायनात का इरशाद है, सबसे अफजल इबादत क्या है? इंसान की मदद। अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हुआ है, तो आप नमाज पर नमाज पढ़ते जाइए। अगर एक मोमिन की मदद करेंगे तो आपका गुनाह मिट जाएगा। सबसे अहम तरीन इबादत मखलूक खुदा की मदद है, और ख़ास तौर से मोमिन, वो भी यतीम। ये आपसे दरख्वास्त है। जी जी हाँ, $100 आज़िया के नहीं, आपको मैं उनका एड्रेस दूँ, आपको भेज सकते हैं। इकट्ठे भेजते हैं तो कोई आज़िया को दे दे, मैं इनको एड्रेस दे दूंगा, ये भेज देंगे। ठीक है आगा, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। हाँ हाँ, अभी आप नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, आप नहीं भेज सकते तो फिर मैं भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। जी असद भेज देंगे। हाँ असद कुछ कह नहीं, भेज देंगे, मैं आपको दे दूंगा, आप भेज दीजिएगा। आप उनका अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें आप डाल दीजिएगा। ठीक जी। जिन्होंने इन यतीमों की मदद की, थैंक यू। उनकी सलामती के लिए और उनके
हाजात की बरारी के लिए शहजादी कौन सलाम की अजमत की खातिर बुलंद आवाज से सलाम।